Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Today we're gonna discuss about Pride and Prejudice, written by Jane Austen. Okay, let's get started. Introduction. Pride and Prejudice by Jane Austen, published in 1815. This novel is a masterpiece that blends romance, social commentary, and wit. Okay, it explores themes of love, class, marriage, and personal growth and continues to captivate readers more than 2 centuries after his publication. Okay, जो नॉवल है ये लिखा था जेन ऑस्टन ने और ये पब्लिश कब हुआ था 1815 में. Is a masterpiece that blends romance, social commentary, and wit. Okay. Okay, overview of the novel is Pride and Prejudice is set in the early 19th century in rural England. Okay, it follows the story of Elizabeth Bennet, one of 5 daughters of the Bennet family, and she navigates societal expectations, family pressures, and her own personal values. Okay, ये स्टोरी किसके गिर्द घूमती है? ये एलिज़ाबेथ बेनेट के गिर्द इसकी स्टोरी घूमती है। और वो कौन थी? वो बेनेट फैमिली की 5 बेटियों में से एक थी और जो जिसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी और उसपे ज़्यादा फैमिली प्रेशर था शादी का, पर्सनल वैल्यूज़ थी एटसेट्रा। ओके। The novel opens with the famous line, "It is a truth universally acknowledged that a single man is possession of a good fortune must be in want of a wife." Okay, this sets the tone for a story where marriage, money, and class interplay in fascinating ways. The plot primarily revolves around Elizabeth's evolving relationship with Mr. Darcy, a wealthy but initially aloof gentleman. Okay, ये जो स्टोरी है इसका प्लॉट किस चीज के रिवॉल्व अराउंड एलिजाबेथ और उसका जो मिस्टर डार्सी के साथ रिलेशनशिप था उसके इर्द गिर्द घूमता है कि मिस्टर डार्सी कौन थे? वो बहुत ही वेल्थी मैन था, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में वो बहुत ही ज्यादा एक अलूफ जेंटलमैन था. Along the way, we encounter a variety of characters and subplots that adds depth and humor to the narrative. Okay, let's discuss its plot summary. Introduction to the Bennet family. The Bennet are a middle class family with 5 daughters. Mrs. Bennet is determined to marry them off to wealthy suitors as their estate is entailed to make higher. Okay, clear. मिसेस बेनेट, मदर ऑफ एलिजाबेथ बेनेट, उनको अपनी बेटियों की किसी अच्छी वेल सेटल फैमिली में शादी करने का एक बहुत शौक था. Now meeting Mr. Bingley and Mr. Darcy. When the wealthy Mr. Bingley rents Netherfield Park, he brings his friend Mr. Darcy. ठीक है, मिस्टर बिंगले ने रेंट पे एक नीदरफील्ड पार्क में घर लिया और एलिजाबेथ बेनेट के घर के करीब था वो, और वहां पे उन्होंने अपने दोस्त मिस्टर डार्सी को भी बुला लिया. Bingley quickly develops feeling for Jean Bennet, while Darcy initially dismisses Elizabeth as not handsome enough to tempt him. Okay, स्टार्टिंग में ही क्विकली मिस्टर बिंगले को जो है जेन बेनेट बहुत पसंद आई, उनके लिए वो डीप फीलिंग्स उन्होंने शो करी. जबकि डार्सी ने इनिशियली क्या किया, उन्होंने एलिजाबेथ की इंसल्ट करी कि शी इज नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट हिम. Elizabeth and Darcy's first conflict. Elizabeth overhears Darcy's insults, speaks her dislike. Meanwhile, Mr. Collins proposes to Elizabeth, but she rejects him, causing tension with her mothers. ठीक है, एलिजाबेथ ने पहले डार्सी से इंसल्ट अपनी सुनी, जिसकी वजह से वो बहुत उसको डिसलाइक करना शुरू कर दिया उसने. बाद में जब मिस्टर कॉलिन ने प्रपोज किया एलिजाबेथ को, तो उसने उनको कॉलिन को भी एलिजाबेथ ने रिजेक्ट कर दिया, जो जिसकी वजह से उसकी माँ की टेंशन और बढ़ गई. Darcy's proposal and rejection. As the story progresses, Darcy realizes the love Elizabeth and proposes. ओके, तो जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करी फिर डार्सी को रियलाइज हुआ कि उसको एलिजाबेथ से लव हो गया है, उसने उसको प्रपोज किया. हाउएवर एलिजाबेथ रिजेक्ट्स हिम. ठीक है, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, साइटिंग हिज रोल इन सेपरेटिंग जेन एंड बिंगले एंड हिज ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर विक्रम. ठीक है, क्योंकि उसने एक लेटर पढ़ा था जिसमें लिखा गया था कि जो है
जेन और बिंगले को अलग करने वाला भी डार्सी है और मिस्टर विक्रम के साथ भी इसने बहुत गलत किया है उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके। Darcy writes Elizabeth a letter explaining his actions, shedding light on Wickham's deceitful nature and his true reason for intervening in Bingley's courtship of Jane. Okay, तो डार्सी ने एलिजाबेथ को एक लेटर लिखा जिसमें उसने विक्रम के मुतालिक जो भी बातें एलिजाबेथ ने बोली थी उनको उसने गलत प्रूव किया और उसकी जो बिंगले की कोर्टशिप थी जेन के साथ उसके भी ट्रू रीजंस बताए। नेक्स्ट है एलिजाबेथ ट्रांसफॉर्मेशंस। Elizabeth's prejudice against Darcy begins to wane as she sees his kindness and integrity. Endless elopement with Wickham threatens the family's reputation. Okay, so Elizabeth का जो prejudice था against Darcy वो उसकी काइंडनेस वगैरह देख के वो बदल गया। लेकिन जो लीडिया बेनेट इसकी छोटी सिस्टर एलिज़ाबेथ की वो विक्रम के जाल में फँस गई। Resolution and happy ending happy ending. Darcy secretly helped resolve Lydia's situation, demonstrating his love and characters. Eventually, Elizabeth and Darcy overcome their pride and prejudice, leading to a joyful union. Okay, सो डार्सी जो थी उसने सीक्रेटली हेल्प करी किसकी लीडिया की उसकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने की रिजॉल्व करने की और उसके बाद इसी वजह से एलिज़ाबेथ जो थी उसने भी अपने और डार्सी के दरमियान जो प्राइड और प्रेजुडाइज था उसको ख़त्म किया और जॉयफुल यूनियन इख्तियार किया। क्लियर है? ये कुछ समरी पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट इसके कैरेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है इसका एलिजाबेथ बेनेट। एलिजाबेथ बेनेट इज द नोवेल प्रोटैगनिस्ट। शी इज इंटेलिजेंट, विटी एंड fiercely independent, challenging societal norms. Her ability to reflect on her own flaws and grow as a person is central to the story. एलिजाबेथ बेनेट एक इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट, वो हीरोइन यानी कि इसकी एलिजाबेथ बेनेट है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, बहुत विटी थी, एक शेरनी की तरह इंडिपेंडेंट थी और सोसाइटी के जो बे बेतुके जो नॉर्म्स बने हुए थे उनको चैलेंज करना चाहती थी। उसमें बहुत एबिलिटी थी कि वो अपने आप पर ग्रो करे और फ्लॉज करे। अपनी गलतियों के साथ ही वो ग्रो करे, उसमें एबिलिटी थी। ठीक है। Second most important character is Mr. Darcy. Darcy began as a proud, reserved character. However, his journey from arrogance to humility and his love for Elizabeth make him one of literature's most beloved romantic heroes. Okay, डार्सी शुरू में बहुत प्राउडी रिजर्व कैरेक्टर दिखाया गया, लेकिन बाद में उसकी जो जर्नी थी बहुत ज़्यादा एरोगेंट एरोगेंट जर्नी दिखाएगी, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी शो करने लग गया। उसका जो एलिज़ाबेथ से प्यार था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। फिर उसने और जिसकी वज़ह से वो क्या लिटरेचर के मोस्ट बिलव्ड रोमांटिक हीरोज़ माना जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जेन बेनेट। The eldest Bennet sister, Jane is gently kind and often too trusting. Her romance with Mr. Bingley contrasts with Elizabeth and Darcy's dynamic. Okay, जेन बेनेट जो है वो एलिज़ाबेथ बेनेट की सबसे बड़ी सिस्टर थी और बहुत ही ज़्यादा जेंटल काइंड हार्टेड थी और वो हर किसी पे जल्दी ट्रस्ट कर लेती थी और उसका जो रोमांस विद डार्सी है उसको कंट्रास्ट किया गया है डायनामिकली एलिज़ाबेथ और डार्सी के रोमांस से। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, एलिज़ाबेथ बेनेट के पेरेंट्स। Mr. Bennet is witty but often detached, while Mrs. Bennet is overly anxious about marrying off her daughters, providing much of the novel's humor. ठीक है। मिस्टर बेनेट जो थे वो बहुत ज़्यादा witty थे, लेकिन वो डिटैच रहते थे, अक्सर मसलों में पड़ना नहीं चाहते थे। जबकि मिसेस बेनेट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी अपनी पांचों बेटियों की शादी करने के लिए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मजाकिया हरकतें भी करी नॉवल में एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। क्लियर? मिस्टर कॉलिंस, a pompous and obsequious clergyman, Mr. Collins represents the absurdities of societal expectation. ठीक है, मिस्टर कॉलिन कौन थे? एक क्लर्जीमैन थे और वो अपनी अहमकाना हरकतों से सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन थी उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेक्स्ट इनके कैरेक्टर्स में आती हैं लीडिया बेनेट एंड विक्रम।
Lydia reckless behavior and becomes manipulative nature add drama and highlights moral contrast within the story. ठीक है, लीडिया जो थी उसमें वो छोटी थी तो उसमें बहुत ज्यादा बचपना था, ठीक है, जबकि जो विक्रम है वो काफी मेच्योर था लेकिन मैनिपुलेटिव नेचर का था जिसकी वजह से ड्रामे में एक मोरल कंट्रास्ट दिखाया गया है, ठीक है, स्टोरी के अंदर। ओके क्लियर, अब इसके कुछ थीम्स डिस्कस कर लेते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक्सप्लोर सेवरल इंड्यूरिंग थीम्स। ओके, नंबर वन थीम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। As the title suggests, the novel examines how pride and prejudice influence relationships. Okay, Darcy's pride and Elizabeth's prejudice initially creates barriers, but self-awareness allows them to overcome these flaws. Okay, initially Darcy's pride and Elizabeth's जो prejudice था उसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ, बैरियर क्रिएट हो रही थी, बट सेल्फ अवेयरनेस के बाद उनके दरमियान की सारी गलतियां खत्म हो गई। ओके, नंबर टू थीम इसमें जो डिस्कस हुआ है वो है मैरिज एंड सोशल क्लास। ओके, Austen critiques the societal pressure on women to marry for financial security. Through Elizabeth, she advocates for marrying for love and mutual respect. ठीक है, तो इसमें जो सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है कि एक विमेन को शादी करनी ही करनी है अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। इन्होंने किस एलिजाबेथ के थ्रू क्या दिखाया है कि शादी किसके लिए करो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लव के लिए करो। सबसे पहले रिस्पेक्ट, देन लव, देन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ओके, थर्ड पॉइंट है इसका इंडिविजुअल ग्रोथ, थर्ड थीम है इसका। ओके, द स्टोरी emphasizes personal growth. Both Elizabeth and Darcy learn from their mistakes and evolve into better individuals. Okay, तो स्टोरी में पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, और जो एलिजाबेथ और डार्सी के दरमियान में जो मिस्टेक्स थी उन्होंने अपनी मिस्टेक से क्या सीखा, अपनी आपको इंडिविजुअली कैसे बेटर करना है उन्होंने ये सीखा, इंडिविजुअल ग्रोथ पे उन्होंने फोकस करा। क्लियर, थीम नंबर फोर है फैमिली एंड रिपीटिशन। The Bennet family's dynamic and Lydia's scandals underline the importance of repetition in Regency era society. Okay, जो लीडिया थी वो विक्रम के साथ घर से भाग गई थी, उसने उससे शादी कर ली थी, ठीक है, तो ये जो स्कैंडल है इससे क्या चीज दिखाई गई है, रिपीटिशन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीटिशन दिखाई गई है सोसाइटी में। नाउ फिफ्थ थीम इज जेंडर रोल्स। Austen subtly critiques the limited opportunities for women, okay, highlighting the precarious position of the Bennet sister. Okay, ऑस्टिन ने क्या चीज़ को क्रिटिक किया है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। ठीक है, हमारे यहाँ आज की दुनिया में भी विमेंस के लिए बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है थ्रू बेनेट सिस्टर। ओके क्लियर, आई होप you like the video. So if you like the video, please like, subscribe and share. Thank you for watching.